नो प्रॉब्लम, सो फॉर द बेस्ट। ओके, तो ये थोड़ा कार्टून बनाया है तुम लोगों के लिए, ये तो पढ़ ही लिया होगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि वी हैव मेनी मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। टुडे विल स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन मेथड। Method of differentiation, there are many, right? We'll try to cover two of them today. The first one is Dabba rule. Class 11 में मिला है तुम लोगों को. I have already told you that. So in detail, if I try to talk about, so what are those actually? Method of differentiations, chain rule, that is known as the Dabba rule. Differentiation of implicit functions, and then exponential and logarithmic functions. So one thing is left out here that I'll type now only. It is a parametric differentiation that is left out. There's one more is there, that is your parametric differentiation. Parametric differentiation. So what is parametric differentiation? We'll come to know afterwards. But now today, without much delay, as we are already late, I'll start with chain rule. Okay? So chain rule क्या होता है? Actually, it is the differentiation of functions of functions. Just for formality, I am writing here the actual explanations, but do not bother about that. I'll tell you the short ones, right? Just you write for your own note. It is chain rule. For applying chain rule, what we do is, suppose you are having a function f y, which is function of x, right? And x is a function of z. X is a function of z. So in other words, what you get, y is the indirect function of z, right? Which we already have got as FOG, if you remember, right? FOG, while we did the composition of function. Okay, now the sound is very clear, comfortable. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. so Yes, once sir. we get like this, then if somebody asks you, you find dy dz. Now you see, y is not direct function of z, it is the function of x. So what we introduce is this dy dx, and then this is dx dz. So this is what the background of the chain rule is. क्लास 11 में भी ये था, क्लास 11 में भी, मगर मैंने ये कुछ नहीं किया क्लास में, डायरेक्टली मैंने मेथड को समझाया था. The reason was that you may have not understood this. आप क्योंकि इसमें तुम्हें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दिख गया तो तुमको समझ में आ जाए. ठीक है, सो ये हो गया कहानी. तो डायरेक्टली नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चंस. डब्बा रूल को कैसे डब्बा रूल होगा, कैसे पढ़ेंगे, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग द क्वेश्चंस. ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन दैट तुम लोग देख लो बुक में क्या है. इट इज अ चेन रूल प्रॉब्लम. दे विल नॉट से दैट यू हैव टू डू इट बाय चेन रूल, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डू इट बाय चेन रूल. सो ये रहा क्वेश्चंस पहले एक्सरसाइज 5.2 का. एनीवे, यू डू नॉट बी पैनिक, ये हम लोग थोड़ा पीछे है. आई एम गोइंग टू टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस. So for that I'll be taking your consent also. Basically I'll take that classes on Sunday. Okay, this is a question. Okay, these are the questions. Few of them I brought. Okay, so you can see we are first doing the easy questions, better to do, right? Afterwards we'll be doing difficult ones. तो क्या बोला है? Differentiate functions with respect to x, right? आप देखो इसमें मैं डब्बा रूल डायरेक्टली बोल रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दैट बॉक्स इज. सो यहाँ पे देखो डब्बा रूल क्यों बोल रहे हैं, व्हाई इट इज सेड टू बी डब्बा रूल, राइट? सो यू आर टोल्ड टू फाइंड द ddx ऑफ साइन स्क्वायर, सॉरी, साइन ऑफ x square plus 5, sin of x square plus 5. अच्छा, normally when we differentiate, what do we have with sin? We have x with sin. But now you try to see that you do not have x
you do not have x here, you have something else, right? You have something else. Please try to listen these things very carefully, because we will not be getting time to get back again to these problems. एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, किसके जगह पे? एक्स में होना चाहिए था, एक्स है दूसरा। तो मैं जो डब्बा रूल का नाम दिया हूं, कारण यही है कि मैं ये जो दूसरा चीज है, which is instead of x we are putting here, I'll consider as a डब्बा बॉक्स, राइट? तो अगर तुम इसको बॉक्स बना लोगे तो कैसे करेंगे देख लो, यू विल बी गेटिंग द आंसर डायरेक्टली। यू ट्रीट दैट बॉक्स, दिमाग में एक्स बना के रख लो। तो देखो साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ डब्बा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस ऑफ डब्बा। साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? कॉस डब्बा। ठीक है, चलो। लेकिन कहानी ये है कि क्योंकि ये डब्बा बोल के बोल रहे हो, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट इट वंस मोर। द बैकग्राउंड इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन तो फिर क्या हो जाएगा? साइन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करोगे ट्वाइस एक्स प्लस 0। सो ओवरऑल में क्या आया? व्हाट इज ओवरऑल कमिंग आउट? ट्वाइस एक्स कॉस, सर हेलो, सर एक्स स्क्वायर प्लस 5। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया मैंने। हाँ, कोई बात नहीं, बाकी पार्ट so you correct that, x square plus 5, right? So this is the answer. Now let us see cos of sin x. Few of the problem I am doing directly. Cos of sin x, number 2, right? So number 2, cos of sin x, ddx of cos of sin x. अच्छा, ये डब्बा होगा। इस बार डब्बा को पहचानो बस। डब्बा मतलब x के जगह पे जो होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला में x के जगह में क्या होना चाहिए था? सॉरी, ओरिजिनल फॉर्मूला में x है, यहाँ क्या है? cos x है। तो डब्बा रूल क्या बोलता है? cos ऑफ डब्बा का डिफरेंशिएशन, cos ऑफ डब्बा ddx ऑफ cos कितना होता है? ddx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x। सो यहाँ भी होगा माइनस ऑफ sin डब्बा, मतलब इतना। और क्योंकि तुमने इसको डब्बा बोल के बोला है, तो इट विल बी व्हाट? ddx ऑफ sin x। तो अल्टीमेटली आंसर क्या है? You will be able to do it directly once you put on little practice. So your answer is what? Cos x, then sin of sin x. This is the answer, right? I'm bringing the next questions. The question 3 you will be able to do yourself, right? I'm bringing question number 4. 4, 5, 6 I'll be bringing. Not all I'll be doing. So if you have any question, you can ask me. I think no, it is already known to you as a method which is already done in class 11. So I think you will not face much problem for this. So it is the next question we have. We have this next question. So question number 4 करते हैं। 4, 4 में क्या है? ddx of, इसमें देखो बहुत सारे डब्बा है, मगर तो ध्यान से देखोगे इसको, इसीलिए लिया इसको। बहुत सारे डब्बा है। डब्बा कहाँ कहाँ है? सबसे पहला डब्बा बाहर से तुम शुरू करोगे। सेक के अंदर जो भी है ये डब्बा है तुम्हारे लिए। सेक के अंदर जो भी है ये डब्बा है। तो सेक एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ddx of sec x. Can someone recall what is ddx of sec x? Anyone? sec x tan x. Very nice. So it is sec x, लेकिन हम लोग सेक डब्बा पढ़ेंगे। तो सेक डब्बा मतलब ये sec of this much, and then फिर 10 डब्बा पढ़ेंगे, मतलब ये। फिर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि तुमने डब्बा पढ़ा, तो दैट डब्बा शुड बी वंस मोर डिफरेंशिएटेड, रिमेंबर इट। अब देखो डब्बा के अंदर फिर डब्बा आ गया, राइट? डब्बा के अंदर फिर डब्बा आ गया, तो इसमें फिर डब्बा रूल अप्लाई होगा। तो ये वाला पार्ट तो अभी सेम ही रह जाएगा, देयर इज नो डिफरेंस। सो यू विल बी राइटिंग दिस एज sec of 10 of root over x, then 10 of
10 ऑफ रूट ओवर एक्स। अब 10 का डिफरेंशिएशन, किसी को पता है 10 का डिफरेंशिएशन? सेक्स स्क्वायर एक्स। वेरी नाइस। तो सेक्स स्क्वायर डब्बा, ये हो गया सेक्स स्क्वायर डब्बा। अब देखो इसमें मैं डायरेक्टली इसको लिखूंगा, आप लिखना क्या चाहिए, डी डी एक्स ऑफ डब्बा, राइट। अच्छा डायरेक्ट नहीं लिखते, चलो लास्ट तक ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब तुम अगर डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स लिख दोगे तो यू आर डन, ये हो गया। एंड देन सेक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स। अच्छा डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स, यू ट्राई टू रिमेम्बर दिस इज अ फॉर्मूला, इट इज 1/2 रूट एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं करूंगा, ये u बाई v फॉर्मूला में कर लेना डबल रूल यूज करके। मैं 6 करने वाला हूँ, 6, क्योंकि 6 में भी देखो काफी पेचीदा टाइप का है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दिस, राइट। पेचीदा है लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 6, तो डी डी एक्स ऑफ क्या दिया है, cos x क्यूब, उसके बाद साइन स्क्वायर, फिर अंडर है ये क्यूब ही है क्या, एक्स टू द पावर 5। बस आप कहानी देखो, लोचा टाइप का हो गया, देख लो। अब सबसे पहले तुम डब्बा सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे आइडिया तो कर लो कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये एक है, ये दूसरा है। तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन करने से हम लोग क्या रूल यूज करते थे, कैन यू रिमेम्बर? इट इज u एंड इट इज v, u इंटू v। अच्छा u इंटू v, u इंटू v का डिफरेंशिएशन कितना था, u डैश v प्लस u v डैश। मतलब पहले एक का डिफरेंशिएशन मैंने क्लास 11 में तुम लोगों को समझाया था, आज फिर मैं समझा दे रहा हूँ छोटा करके। हाँ, ये रहा बाप, ये रहा बेटा, दोनों डॉक्टर के पास गया है। एक ही डॉक्टर दोनों को देखेगा, एट ए टाइम तो नहीं देख सकता है। जब बाप को ट्रीट करेगा, जैसे इसको ट्रीट कर रहा है, तो बेटा बगल में बैठा रहेगा बुद्धू का जैसा। फिर जब बाप का ट्रीटमेंट हो गया, फिर बेटे के बगल में जाएगा, बाप बैठा रहेगा। तो दिस इज द आइडिया व्हाट वी यूज फॉर डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, पहले मैं डिफरेंशिएशन करूंगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, तो कौन बैठा रहेगा बुद्धू का जैसा बगल में, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 बेकार में बैठा रहेगा। फिर क्लास यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। इस बार किसका ट्रीटमेंट हो गया, कॉस एक्स क्यूब का ट्रीटमेंट हो गया, और बैठा कौन रहेगा, हु विल बी सिटिंग आइडल, ये बैठा रहेगा, सॉरी ये बैठा रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, राइट। अभी फिर डब्बा रूल यूज करना है, डब्बा रूल। कहाँ डब्बा रूल यूज होगा, वो डब्बा रूल विल बी यूज कॉस। अच्छा इसमें एक ब्रैकेट दे दो, नहीं तो थोड़ा मीनिंग अलग हो रहा है, ये वाले में ब्रैकेट अलग दे दो, क्योंकि ये पूरा दिख रहा है कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, ठीक है। तो डब्बा हो गया एक्स क्यूब। तो दिस टाइम कॉस ऑफ डब्बा फॉर्मूला कितना होता है, साइन ऑफ डब्बा। फिर एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे, एक साथ डायरेक्टली कर रहा हूँ, डब्बा रूल है। और बाकी जो पीछे है यू जस्ट पुट इट लाइक दिस, ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप, cos x क्यूब बेटर रहा। इसमें डब्बा कौन है, who is the डब्बा हियर, डब्बा इज x टू द पावर 5। अच्छा इसमें तो लोचा है, डब्बा x टू द पावर 5 होने से पहले भी एक चीज देख लो, इसमें कहानी है ये x टू द पावर 5 होल स्क्वायर। तो डब्बा इस बार x टू द पावर 5 नहीं है, डब्बा है साइन x टू द पावर 5। तो कैन यू टेल मी इसका शक्ल कौन सा फॉर्मूला के साथ मिलता है, इट इज क्लोज टू ट्वाइस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ट्वाइस एक्स होता है, तो इट इज 2x टू द पावर दिस। और ये डब्बा है, इसको फिर तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आया है या नहीं, देखो नहीं आया तो बोलना, आना चाहिए, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 11 में भरपूर किया है। इसमें फिर होगा cos x क्यूब, 2 को ले दो इधर, इज sin x टू द पावर 5। फिर डी डी एक्स ऑफ साइन डब्बा, cos डब्बा हो गया, एंड देन 5x टू द पावर 4 डायरेक्टली किया इसको।
अच्छा, इसका सिंप्लीफिकेशन स्टेप तुम्हारा है, तुम लोग पहले देख लो, देख लो। और करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8 ला रहा है, 7 क्वेश्चन नंबर 7 8, क्वेश्चन नंबर 7 8, ये है 7 एंड 8। 7 एंड 8 का वो लास्ट वाला नहीं करूंगा, cos रूट ओवर x यू कैन डू योरसेल्फ, ये आसान है, बहुत ही आसान है। 7 कर लेता हूँ, 7 भी डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी कर लेता हूँ। क्या दिया है, dx ऑफ 2 रूट ओवर cot x स्क्वायर। देखो इसको तुम लोग सिंप्लीफाई कर लो, सबसे पहले तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और रूट ओवर को हम लोग जब लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। अब देखो इसमें गलती होने का एक चांस है, ये कॉट है, गलती होने का क्या चांस है, यू मे थिंक कि ये एक्स स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट लिया जाएगा एंड इट विल बी cot x, बट रिमेंबर इट इज नॉट सो, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। तो अभी डब्बा रूल यूज करो, डब्बा कौन सा है देख लो, व्हाट इज द डब्बा, डब्बा ये पूरा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, x टू द पावर हाफ के साथ ये रिलेट हो रहा है, so just you write what is ddx of x to the power half, can you remember it is 1 by 2 x to the power half, अभी अभी क्या था रूट x का, ठीक है। सो इसमें होगा 2 1 by 2 और नीचे आ जाएगा क्या, cot, cos लिख रहा हूँ बार बार, cot x स्क्वायर के ऊपर हाफ, ये एक हो गया कहानी। फिर तुम्हें क्या डिफरेंशिएट करना है, cot स्क्वायर x, डबल रूट, ये दोनों कट गया, दिस गॉट कैंसल, ये दोनों का काम तमाम हो गया। तो नीचे देखो बढ़िया से लिखो, इट इज cot x स्क्वायर अंडर द रूट एंड ddx ऑफ cot x, कैन समबडी टेल मी, इधर दब्बा होगा x स्क्वायर माइनस cosec x, माइनस, यस समबडी टोल्ड cosec x, माइनस ऑफ cosec x नहीं है, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x है। अच्छा मेरे पास टाइम आ गया 10 मिनट का, cosec स्क्वायर, तो इसमें फिर ये डब्बा आ जाएगा, बस अभी तुम्हारा आंसर खत्म, अभी तुम्हारा आंसर खत्म, ऊपर आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर, फिर ddx ऑफ x विल बी ट्वाइस x, और नीचे है ये कहानी cot x स्क्वायर अंडर द रूट, तो इस ट्वाइस x को आगे डाल के लिख लो, बस राइट। सो लिखो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ। दूसरा मतलब इसमें एक काम करते हैं, आज 9 10 को कर ही देते हैं, दूसरा मेथड शुरू करने से अच्छा है, ये नहीं तो बाद में रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन नंबर 9, ये बुक में है डायरेक्टली, तुम लोग क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। So this is the question. Prove that this function is not differentiable at 1. तो याद करो डिफरेंशिएबिलिटी का हम लोग वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल था उसी से काम चलाते थे, ठीक है। तो इधर भी हमको क्या करना है, लेस देन लिमिट, लेस देन डेरिवेटिव एट 1 एंड राइट देन डेरिवेटिव एट 1, निकल के देखो, अगर हो गया तो यू आर डन, और नहीं हुआ तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन क्या है लिख लो, function is equal to fx equal to mod of x, where x is in a real number. Now less than derivative, LH derivative, LHD less than derivative कहाँ पे, 1 में, चाहो तो ये लिख दो LF'1, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या था, h tends to 0, can you remember that we were doing it like this, याद करो फॉर्मूला, हमें यहाँ पे c मिला था तब c प्लस h लिखा था, बस बढ़िया है, आप फॉर्मूला अप्लाई करो और दिमाग में डालो, समझ में आना चाहिए, f of anything is mod of that thing minus 1 and f of 1 will be how much, 1 minus 1,
देख लो, मैंने f ऑफ दिस विल बी व्हाट, मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस वन। क्यों? बिकॉज यहाँ जो x है यहाँ पे आएगा, तो 1 प्लस एच देने से ये आएगा, 1 देने से 1 माइनस आएगा। सो इट इज द रिजल्ट एंड देन वर्क इट आउट। ये कितना होगा, मॉड ऑफ h होगा, नीचे h रहेगा, ये तो 0 हो गया, दिस वैल्यू इज 0, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी कहानी आया, इसके बाद क्या लिखोगे, तुमने मॉडुलस को नेगेटिव से लिया है, देखो h को नेगेटिव से लिया है, h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब h इज लेस देन 0, सो ऊपर में कितना होगा, माइनस h होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से वैल्यू कितना आएगा, माइनस। तो तुम अगर यहाँ पे लिखना भी चाहते हो तो लिख दो, नहीं लिखने से भी कोई नंबर कटेगा नहीं। दिस इज फॉर योर रेफरेंस, दिस इज व्हाट हैपेंड, we have got right less than limit. Now RHD, right hand limit, that is RF dash 1. What we'll get here is h tends to 0 from right, and then formula 1 plus this minus f of 1 this, ठीक है। तो अप्लाई करो अभी यहाँ पे, वही आइडिया है, h tends to 0 from right, राइट होने से क्या होता है, h पॉजिटिव होता है, दिमाग में ही रखो। तो यहाँ पे फिर होगा 1 प्लस h माइनस 1, ये होगा ही, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 होगा ही, राइट। तो ये वाला क्या होगा, 0 होगा। So ultimately what will happen, limit of h tends to this plus, यहाँ पे mod of h by h, now you tell if h is positive, mod of h is what, h only, so this both values will become equal and then this will be 1. So what did you find, LF dash 1 is not equal to RF dash 1, therefore f dash 1 does not exist, f dash 1 does not exist. So what will be our final conclusion, therefore वो dialogue लिखना पड़ेगा सर, that f is not differentiable at x equal to, that's the answer, that's the answer, please see this। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, आज इसका निपटा देते हैं पूरा। I am left out with around 3 minutes. Question number 10. Yeah, this is the question number 10. तो नोट शेयर करूंगा, अगर रुक गया है तो रुकने दो थोड़ा सा। But this I am going to do. So this is the question. ये सब क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग इसको नहीं कर पाता। क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नहीं कर पाने का कारण है दे डू नॉट रिमेंबर द डेफिनेशन, दे फॉरगेट। तो यहाँ पे बोला है कि ये वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 और 2 में डिफरेंशिएबल नहीं है, मैं एक का कर देता हूँ एट 1। तो यू फाइंड द लेस देन डेरिवेटिव डायरेक्टली, यहाँ पे फंक्शन वाला चक्कर नहीं करेंगे, लेस देन डेरिवेटिव फॉर्मूला लिखो पहले, बाद में सोचेंगे क्या लिखना है। फॉर्मूला तो लिख दो कम से कम, 1 प्लस h f ऑफ 1 ऐसे लिख दिया हमने, ओके बढ़िया। आप फंक्शन को अप्लाई करो, फिर बाद में सोचेंगे वैल्यू कितना आएगा, इट इज 1 प्लस h greatest integer function 1। अच्छा, each of you can remember what is greatest integer function, it is the greatest value, already I discussed I think in 1 class, it is the integer value of the function, ठीक है। अगर कल को कोई 1.3 बोलेगा वैल्यू आता है 1, अगर 0.3 बोलेगा वैल्यू आता है 0, अगर 1.9 भी बोलेगा वैल्यू आएगा 1। दैट मींस द इंटीग्रल पार्ट यू हैव टू राइट। आई थिंक इट इज क्लियर। सो अभी देखो, तुम्हें सोचने का बात है, यहाँ पे सोचने का बात है, व्हाट अबाउट दिस क्वांटिटी, नेगेटिव, h इज नेगेटिव, h इज लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, h इज लेस देन 0, तो तुम्हें किसका निकालना है, 1 प्लस h का निकालना है। तो दोनों साइड में 1 प्लस h अगर ऐड कर दोगे तो कितना, 1 ऐड कर दोगे तो क्या होगा,
1 plus 8 is less than 1. ठीक है, लेस देन 1 का मतलब है तुम अगर नंबर लाइन में देखोगे 1 इधर है, 0 इधर है, अगर कोई भी नंबर यहाँ पे तुम पकड़ते हो लेस देन 1 तो उसका इंटीग्रल वैल्यू टू द लेफ्ट इज 0. सो इसका मतलब क्या हुआ, जब तुम लिमिट इवेलुएट करोगे, राइट, लिमिट इवेलुएट करोगे उससे पहले ये वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, और ये तो 1 है. अच्छा, ये कितना हुआ ओवरऑल में, -1/0 आया. इज इट डिफाइंड, अनडिफाइंड हुआ. तो राइट हैंड लिमिट निकालने का जरूरत नहीं है. अगर ये अनडिफाइंड है तो ये आराम से नॉट डिराइवेबल है. देयरफॉर f'1, दूसरा वाला भी कर लेना तुम लोग. सिमिलरली डज नॉट एग्जिस्ट, राइट. देयरफॉर f is not differentiable at x equal to 1. ठीक है, 1 मिनट टाइम है, मैं तुम लोगों को लेस देन लिमिट एट x equal to 2 भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें अनडिफाइंड नहीं भी आ सकता है, अनडिफाइंड नहीं भी आ सकता है. देखते हैं. ठीक है, लेस देन लिमिट मैं दिखा देता हूँ एट 2 में लेस देन लिमिट दिखा देता हूँ. 1 मिनट जैसा टाइम है. एट x equal to 2, LHD that is LF'2, 1 मिनट से कम टाइम बचा हुआ है, कभी भी लाइन काट सकता है. काटने से भी तुम लोग समझ में आ जाएगा. अच्छा, ये हो गया. अच्छा, इस बार क्या करोगे, पिछले बार तुमने 1 ऐड किया था, इस बार ऐड करोगे 2 दोनों साइड में. तो 2 से लेस होने से ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट करने के लिए. यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1 और f(2) मतलब 2. ओ, ये भी अनडिफाइंड ही हुआ, राइट, क्योंकि इसका वैल्यू भी आएगा -1/x, तो ये अनडिफाइंड. देयरफॉर दिस डज नॉट एग्जिस्ट. थोड़ा बढ़िया से आंसर लिखना. आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा. Tomorrow we'll take up the other methods and I am going to take extra class on Sunday. ठीक है, संडे इवनिंग को बेटर लगेगा या मॉर्निंग को बेटर लगेगा, प्लीज सेंड मी इन द व्हाट्सएप इंडिविजुअली.